Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss lecture number 8, and this is related with the apparatus. Temperature calibration. In order that the balance shall operate with as little interference as possible, the sample temperature is often measured by a thermocouple placed near to but not in contact with the sample. के लिटिल इंटरफेरेंसेस के लिए जो है हमें चाहिए कि सैंपल का जो टेम्परेचर है वो थर्मोकपल से हम मेजर कर लेते हैं। और थर्मोकपल जो है दिस इज़ ए टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस। जिस तरह हम टेम्परेचर को थर्मामीटर से मेजर करते हैं, लेकिन यहाँ हम थर्मामीटर यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए कि यहाँ हम बहुत हाई टेम्परेचर यूज़ करते हैं। तो वो नियर टू द सैंपल होना चाहिए और वो डायरेक्ट कांटेक्ट उसका सैंपल के साथ नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि एक तो उसकी थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाती है सैंपल की, दूसरी बात यह है कि वो वेंग इंटरफेरेंसेस में भी आ सकता है, और तीसरा जो है वो ये है कि यानी कैटालिटिक डिग्रेडेशन पहले ऑफ द सैंपल, दूसरा जो है वो वेंग एरर, और तीसरा जो है कंटेमिनेशन ऑफ द सैंपल भी हो जाता है। तो इसलिए इस थर्मोकपल को डायरेक्ट सैंपल में हम नहीं रखते, बल्कि नियर टू द सैंपल होता है। सैंपल टेम्परेचर थर्मोकपल्स आर जनरली of the same type used for furnaces, but frequently rather small and more delicate since they are nearer the sample and the product of the reaction। के जो थर्मोकपल्स हम फर्नेस के टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जो सैंपल थर्मोकपल है या सैंपल के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो थर्मोकपल यूज़ किया जाता है वो भी उसी तरह होना चाहिए, लेकिन ये छोटा होना चाहिए और it should be nearer to the sample. The temperature measured by the thermocouple which is not in contact with the sample must be subject to a thermal lag. Thermal lag is the time delay for heat to be conducted through a material which could be several degrees। दोबारा इसको कि थर्मल लेग क्या है, जिस तरह हमने पहले भी कहा है कि लेग ज़्यादातर यूज़ किया जाता है द डिस्टेंस बिटवीन टू इवेंट्स। तो अगर थर्मल लेग की बात करें तो वो डिस्टेंस यानी दो थर्मल इवेंट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको थर्मल लेग का नाम दिया जाता है। जिस तरह कि एक ऑक्सीडेशन है, दूसरा रिडक्शन है, तो इन दोनों के दरमियान जो टेम्परेचर डिफरेंस है या जो थर्मल डिफरेंस है, हीटिंग डिफरेंस है, उसको थर्मल लेग का नाम दिया जाता है। The temperature measured by a thermocouple which is not in contact with the sample must be subject to a thermal lag which could be several degrees। तो वो कई डिग्री तक होता है, यानी कई डिग्री सेल्सियस हो सकता है। Unless the experiment is carried out isothermally on a very small sample, this lag will vary with temperature and with reaction proceeding, the furnace atmosphere, the heating rate and the geometry of the sample of the system। कि अगर हम we are carrying the experiment isothermally, यानी in which we are kept the temperature constant तो
अब ये जो थर्मल लेग है वो वेरी हो जाता है या वो चेंज हो जाता है, किस वजह से? वो टेम्परेचर विद रिएक्शन प्रोसीडिंग द फर्नेस एटमॉस्फेयर, हीटिंग रेट और ज्योमेट्री ऑफ द सिस्टम। तो इन चीज़ों की वजह से जो थर्मल लेग है वो भी चेंज हो जाता है। It is very important to calibrate the thermobalance in conditions which reproduce those which will be used in actual experiment and to be able to reproduce the condition on a variety of instruments. It is very important to calibrate the thermobalance in condition which reproduce those which will be used in actual experiments and to be able to reproduce the condition and a variety of experiment। कि जो थर्मोबैलेंस हम कैलिब्रेट करते हैं वो उसी कंडीशन पे करनी चाहिए जिस कंडीशन पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। A survey was carried out by ICTAC, ये वही एब्रीविएशन है जो कि यूज़ किया जाता है कि इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ थर्मल एनालिसिस कॉन्फ्रेंस of the most appropriate method of temperature calibration of thermobalance and concluded that a sharp reproducible physical change would give the best results. The materials selected are metals and alloys which are ferromagnetic at low temperature but which lose their ferromagnetism at a well-defined calorie point। के ज़्यादातर बैलेंस को कैलिब्रेट करने के लिए हम मेटल्स यूज़ करते हैं और वो भी फेरोमैग्नेटिक सैंपल या सब्सटेंसेस होते हैं। अब ये क्यूरी पॉइंट्स क्या है? Curie points also called Curie temperature। अब ये टेम्परेचर है at which certain magnetic material undergo a sharp change in their magnetic properties। कि वो टेम्परेचर जिस पे है कुछ में जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाए। जिस टेम्परेचर पे वो चेंज हो जाए तो उसको क्यूरी पॉइंट का नाम देते हैं। If the magnetic material is placed in the sample holder and a magnet placed below the sample as shown in figure 2.4c, ये वही फिगर है जो कि हमने थर्मोबैलेंस के डिफरेंट डिज़ाइन में हमने पढ़ा था, जिसके नीचे एक मैग्नेट रखा जाता है। The magnetic force on the sample will cause an apparent increase in mass. In a thermogrametric run in nitrogen, the force will disappear fairly abruptly at the Curie point as shown in figure 2.7। ये वही फिगर है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इसमें इसकी बात कर रहे हैं। अब ये वो क्यूरी पॉइंट का रोज है। दिस इज़ द अपेरेंट मास वैल्यू। ये जो वाई एक्सिस पे एक्सिस पे टेम्परेचर जो है। अब ये दिस इज़ ए थर्मोग्राम। आपको इस तरह नज़र आ रहा है कि यहाँ से इधर पर जा रहा है, फिर इसको इधर से एक्सट्रापोलेट किया है इसको, और इस यहाँ से एक्सट्रापोलेट किया है। इसका जो मिडल है वो ये मिडल है, ये पॉइंट। अब इसको नीचे जो है लाया जाता है तो डेट इज़ टी
टू इज़ द क्यूरी पॉइंट, और ये कौन सा सब्सटेंस है, ये निकल है। तो दिस इज़ द determination of curie point of a sample. Figure 2.7 curie point curve using the arrangement of figure 2.4c. For nickel, the reported value are T1 351.4 degrees Celsius, T2 52.8 degrees Celsius, T3. T2 is taken as the Curie point for calibration. The mid temperature on the peak of the DTG curve is now used as a fixed point for calibration using the National Institute of Standard and Technology material listed in table के इस पॉइंट पे हम जो है दूसरी सब्सटेंसेस उसकी कैलिब्रेशन करते हैं. Another method of calibration uses wires made from the high purity material of very accurately known melting points such as those used in calibrating DTA. अब these are the substances, आपको ये नज़र आएगा ये सैम्पल है या आप इसको समझ लें कि these are the substances, ये ज़्यादातर सारे एलाई हैं अब द निकल एंड आयरन. तो ये उसकी जो है क्यूरी पॉइंट्स है जो कि फिक्स है. अब इस मटेरियल को थर्मोबैलेंस में रख के हम जो है थर्मोबैलेंस को कैलिब्रेट करते हैं. तो ये है पर मेनोरम 3 निकल मोमेटल, ये आयरन निकल आयरन सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक एलाई पर नोरम 5 और ये ट्रेफॉरम. तो बेसिकली these are the alloys used as a calibrating material or substances. These wires are used to attach a mass to the sample pane which will detach immediately the wire melts. A rough check on the calibration may be performed with known reaction and ensuring that the DTG, ये derivative thermogrammetry, peak temperatures match those obtained on the apparatus when it has been recently calibrated by standard methods. तो ये how we can calibrate the temperature या how we can calibrate the thermobalance, तो ये materials जो है वो ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं ये materials. अब एटमॉस्फेयर की तरफ आते हैं. The need to surround the sample in an inert or a reactive atmosphere and to control the evolution of gases from the sample generally means that thermogrammetry is conducted in a flowing gas stream. चूँकि हम sample को हीट करते हैं, जब when the sample is heated different gases are evolved, तो वो उस sample के इर्द गिर्द होते हैं. Too high a flow rate can disturb the balance mechanism, while too low flow rate will not remove product gases or supply reactant gases. तो न ज़्यादा फ्लो रेट होना चाहिए, अब द गैसेस न कम होना चाहिए. Therefore, a flow rate of about 10 to 30
centimeter cube per minute is often used. The flow of the gas can also contribute to the transfer of heat and assist the transfer of products to any external gas एनालिसिस सिस्टम के गैस फ्लो जो है, जो गैसेस इवॉल्व हो जाते हैं ड्यूरिंग द थर्मल एनालिसिस, तो उनका फ्लो जो है 10 to 30 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट होना चाहिए. If we wish to investigate a reaction that produces gas, ये एक रिएक्शन है, A सॉलिड है, जब इसका हीट करते हैं तो B सॉलिड और C जो है दिस इज़ गैस. अब इसका ये जनरल इक्वेशन है, इसका ये एग्जांपल है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है और ये गैसियस फॉर्म में. देन वी कैन कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट इन ए फ्लोइंग इनर्ट atmosphere such as nitrogen, when the carbon dioxide will be swept away as soon as it is formed, or in an atmosphere of carbon dioxide which will shift the position of the equilibrium according to the Le Chatelet principle. तो ये अगर इस रिएक्शन का एटमॉस्फेयर जो है हम नाइट्रोजन रख ली या कार्बन डाइऑक्साइड रख ली, तो उनसे जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाता है. इफ़ द सैंपल इज़ कन्फाइंड देन द एटमॉस्फेयर अराउंड इट इज़ मेड बाय sample itself, that is it is self generated. अगर हम सैंपल को एक मुकीद यानी एक ऐसी एटमॉस्फेयर में जो कि बिल्कुल उसको बंद रख ले, तो फिर चूँकि उससे जो गैसेस इवॉल्व हो जाते हैं तो वही गैसेस होते हैं. दिस विल काज सिमिलर इफेक्ट्स टू एन externally imposed high pressure of the product gases. तो जिस तरह दूसरी गैसेस चाहे यानी एटमॉस्फेयर हम प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो इनर्ट है या रिएक्टिव एटमॉस्फेयर है, तो जिस तरह वो जो है एक प्रेशर क्रिएट करता है उस प्रोडक्ट पे या उस सैंपल पे, तो इसी तरह जो उसकी अपने गैसेस है वो भी एक प्रेशर जो है वो प्रोडक्ट पे क्रिएट कर लेता है. इफ़ वी वांट द बेस्ट contact between sample and surrounding gases, we must spread the sample thinly or use a porous or gas container, taking care that sample holder is inert to all sample and gases. अब बेस्ट रिज़ल्ट के लिए हमें क्या करना है कि सैंपल के इर्द गिर्द जो है वो जो सैंपल है हम उसको एक यूनिफॉर्म और थिन लेयर में उसको स्प्रेड कर ली, या कोई उसको फोरस या गैस कंटेनर यूज़ कर ली, ताकि उससे जो गैसेस जो है क्रिएट होते हैं वो इधर उधर निकल जाएं. टेकिंग केयर दैट द सैंपल होल्डर, और सैंपल होल्डर जो है वो इनर्ट होना चाहिए. तो ये आज का लेक्चर था. इसमें हमने पहले जो चीज़ डिस्कस की है वो टेम्परेचर कैलिब्रेशन, और फिर उसकी टेम्परेचर कैलिब्रेशन हम कैसे करते हैं. तो उसके लिए दो मेथड्स है. कुछ मेटल्स, ज़्यादातर मेटल्स उसकी कैलिब्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, या वायर जो है वो हम यूज़ करते हैं. और वो मटेरियल या जो मेटल्स हम यूज़ करते हैं या उसके एलाय, तो
तो उसका ज़िक्र भी हमने किया है कि दीज आर बेसिकली एलाई ऑफ द निकल इन आयरन और अदर मेटल्स। और वायर को भी हम एज ए कैलिब्रेटिंग सब्सटेंस यूज़ करते हैं। फिर हमने उसके बाद एटमॉस्फेयर की बात की कि एटमॉस्फेयर कैसे होना चाहिए। तो ये आज का लेक्चर था। थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस।